All right. Hi, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. All right. So today we will start with the next topic, that is redox reactions. Now, as part of the weightage that is there in KVPY, if you will do a quick analysis of chemistry section and उसमें कैसे questions आ रहे हैं, so we find that redox reactions वाला part जो है या volumetric analysis या mole concept part 2 is something which is a very important chapter that is there. इसमें से हर साल काफी सारे questions पूछे जाते हैं relative to other chapters, of course. So I do have those questions also with me. So while taking you through these subtopics today, I will make you also practice some of those questions. पहले quickly हम इसके understanding grasp कर लेते हैं, and then फिर साथ में इनके questions वगैरह भी idea निकालेंगे. ठीक है. Now let me begin our discussion with the first simple introductory concept of what oxidation and reduction means. An old definition, something which you might have studied in your junior classes, is based upon the addition of oxygen or removal of hydrogen and vice versa. However, this definition is something which has been discarded, and a new definition of the concept of oxidation and reduction has been adopted, which is a more universal definition, which is based upon loss or gain of electrons, right? So when we analyze chemical reactions, right, we understand that atoms exchange electrons or share electrons with each other during those chemical reactions. Now, in case in a reaction, if a substance is losing electrons, then we say it is undergoing oxidation. If a substance gains electron, then we say it is undergoing reduction. Apart from this definition based upon loss or gain of electrons, there is another important definition which is based on a concept called as oxidation state or oxidation number. Now, यहाँ पे आप notice करोगे that when we talk about oxidation, it is defined as increase in oxidation state or increase in oxidation number. Reduction means decrease in oxidation state or decrease in oxidation number. There is nothing like a reduction state or a reduction number that is defined. We only define oxidation state or oxidation number. Now, definitely, the question that comes to your mind is, sir, what is meant by oxidation state or what is meant by oxidation number? So let's start to understand that in detail. A very, very simple description of oxidation state can be something like valency. However, that is not the accurate definition. It's a simplified version. जो detailed definition है वो मैं आपके साथ में अब discuss करूंगा, that what does oxidation state or oxidation number means. Now, oxidation number किसके लिए define करा जाता है, पहले आप वो notice करना. Oxidation number is defined for an atom of an element in a particular species. This is the context behind oxidation number. अभी oxidation number क्या होता है मैं बताऊंगा, but उसके पहले you must understand the context also. Oxidation number is defined for an atom
of an element in a particular species. Right? So अगर मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का क्वेश्चन पूछूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ से नाइट्रोजन क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो द फर्स्ट आंसर हैज टू बी सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इट्स एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन किसमें, NO में, NO2 में, N2O में, किसमें आप पूछना चाह रहे हो, बिकॉज द आंसर माइट वेरी. ठीक है, सो दैट इज व्हाई it is important to know the context that oxidation number is defined for an atom of an element in a particular species. Right? यहां पर मैंने ये थोड़ा सा और डिटेल कुछ इस तरीके से लिखा है बिकॉज हो सकता है हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे दैट एक ही स्पीशीज के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट के मल्टीपल एटम्स हो और उनका भी अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो, ऐसा भी पॉसिबल है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नोटिस करेंगे इन सम टाइम कि देयर विल बी सर्टेन एग्जांपल्स जहां पर से फॉर एग्जांपल C3O2, ठीक है, आपको पता नहीं होगा शायद, बट ये कंपाउंड है जो कि एग्जिस्ट करता है. इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स आर देयर. ठीक है, तो आउट ऑफ द 3 कार्बन एटम्स एक कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता है और 2 कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा. ठीक है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बताऊंगा. ठीक है, बट यू मस्ट नो दैट व्हाई हैव आई written this context for oxidation number. That oxidation number is defined for an element, or sorry, for an atom of an element in a particular species. अब नोटिस करना इसका मीनिंग क्या होता है, what is oxidation number, what is its definition. So in very very simple terms यहाँ पे नोटिस करना, it is equal to the number of electrons lost or electrons gained by the atom while forming that particular species. अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो हम लोग नेगेटिव साइन असाइन करेंगे. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे. तो लेट मी टेक सम आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स फर्स्ट बिकॉज दे आर इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स से मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na in NaCl क्या होगा. So what you will find is that in this species, in this compound NaCl, Na का atom is going to lose electron. कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. राइट, सो एज अ कॉन्सिक्वेंस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम हो गया. ठीक है, वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. ठीक है, वैलेंसी हो गया है. हाँ, सिंपल एग्जांपल्स में ये वैलेंसी की तरह भी लिखा जाएगा. धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ाऊंगा आपके साथ में. देन नोटिस करना, अगर मैं आपसे पूछूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन MgCl2 क्या होगा. So again you will understand that MgCl2 is an ionic compound only. इसमें some students might be giving answer as -1, some might be giving as -2. ठीक है, सही आंसर जो है that is -1. Right? In fact, the correct way in which I would want to answer is that in MgCl2, oxidation number of both atoms of chlorine, ठीक है, 2 एटम है ना, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इज -1. राइट, दोनों क्लोरीन के एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं.
एक्सेप्ट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया हुआ, ठीक है। एंड क्योंकि दोनों एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो हम लोग इन जनरल ऐसे भी बोल देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1। ये भी लैंग्वेज यूज करी जाती है। समझ में आया? -2 विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। हाँ, मैं ये पूछता कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इन द सेम कंपाउंड, if I would have asked you what will be the oxidation number of magnesium, तो the answer would have been +2, क्योंकि यहाँ पर एक ही मैग्नीशियम का एटम है जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थोड़े सिंपल एग्जांपल्स हो गए। समटाइम्स स्लाइट कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स आल्सो आर देयर इन विच थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी होने लगता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीबी lead and oxygen in Pb3O4? ऑक्सीजन का तो -2 आप लोगों ने सही बता दिया, ठीक है। 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। चलो, व्हाट अबाउट पीबी? नाउ अब यहाँ पे सम ऑफ यू आर गिविंग मी एन आंसर कि सर पीबी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +8/3, बट does that make sense? Like, what does it say? It means 8/3 electrons are being given by Pb. What do I mean by this fractional electron? Right? So यहाँ पर नोटिस करना, आपका आंसर वैसे सही है 8/3 अगर आपको बोलना है, but it's an average value. The real answer is something which requires you to have this piece of knowledge. Okay, this is like an additional piece of knowledge which I don't think many of you would have, but if you have तो अच्छी बात है, ठीक है। This is like an additional information that Pb3O4 is a 2:1 mixture of PbO and PbO2, right? PbO में आप नोटिस करोगे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है, PbO के अंदर वो +2 रहेगा Pb का, एंड PbO2 में कितना रहेगा? PbO2 में द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +4, राइट। तो यहां पर एज यू कैन सी ये 2:1 मिक्सचर है, तो 2 PbO के कंट्रीब्यूशन है एंड 1 PbO2 का कंट्रीब्यूशन है। सो क्या समझ में आ रहा है? 2:1 का मिक्सचर है ना ये। तो आउट ऑफ द 3 Pb atoms, 2 Pb atoms are in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ये यहाँ पर ऐसे लिखा ना 2:1 का मिक्सचर है, तो यहाँ पर 2 Pb atoms are in +2 oxidation state and 1 is in actually +4 oxidation state. अगर आप इसका एवरेज लेते हो तो yes, you get the answer as 8/3, which is also an accepted answer, which is also a correct answer. But if a finer piece of information is being asked that what is the actual oxidation state of Pb atoms, then you'll have to report the answer as +2 and +4, ठीक है। Now चलो एक क्विक क्वेश्चन इसका आंसर दे दो। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन इन Al2O3? हाँ, कुछ पूछना है देवांश तुम्हें?
मेरे को जो आपने +4 और +2 बताया वो समझा, बट एवरेज वाला कैसे आया वो नहीं समझा सर। 8/3 कैसे आया? दो आइटम है जो कि +2 है और एक आइटम है +4 है, तो सम ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम्स 8/3 आ गया ना। अच्छा, तो मतलब एवरेज निकाला। ओके ओके। हाँ, बोलो तनीश। सर हम लोग इधर ऑक्सीडेशन की बोले सर, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन सर, वो तो रिडक्शन में जाएगा ना सर? नहीं नहीं, सो दैट इज व्हाट आई सेड, दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रिडक्शन नंबर। यस सर। हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर ही डिफाइन करते हैं, राइट। हाँ सर। एंड अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी स्पीशीज का बढ़ रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी स्पीशीज का कम हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं हाँ सर। रिडक्शन। ओके सर। ठीक है, आएंगे हम यस लोग धीरे धीरे उस पर आएंगे, पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यस सर। नाउ आंसर इसका रहेगा +3 -2, राइट। अल्यूमिनियम इज +3 एंड ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, +6 -6 मत करना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यू कैन से दैट here we have two aluminum atoms, each one showing an oxidation state of +3, and two oxygen atoms showing an oxidation state of, sorry, three oxygen atoms showing an oxidation state of -2। ठीक है, हाँ, वो कई बार होता है, सम स्टूडेंट्स एक्चुअली आई डोंट नो कहीं से सोच के दे देते हैं +6 -6 एज एन आंसर। अच्छा, तो ये तो आसान पार्ट था, बिकॉज मैंने आपके साथ में अभी आयोनिक कंपाउंड्स का डिस्कशन किया। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में थोड़ा सोचना पड़ता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में ध्यान से पैराग्राफ समझना। In covalent compounds there is no transfer of electrons, there is no actual transfer of electrons। क्या होता है, there is sharing of electron that happens। However, what we will do is that for the sake of calculation of oxidation state हम लोग assume करेंगे that electrons are transferred from a less electronegative atom to a more electronegative atom। ठीक है, we will assume a transfer, hypothetical assumption लेंगे क्योंकि एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वी विल डू दिस। फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH4, राइट। सो अब इसमें आप नोटिस करोगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज इट्स बॉन्डिंग, लाइक हाउ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, एक सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा जहां पे हर कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है। अब बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज समथिंग विच आई एम अज्यूमिंग कि आपको आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो थोड़े टाइम में आप इसको अक्वायर कर लोगे, इस नॉलेज को। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, यहाँ पर मैं एज एडिशनल पीस ऑफ नॉलेज लिख देता हूँ, many of you already know, some of you don't know, but कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। ठीक है, among the elements that are there in the periodic table, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, एंड टॉप टू डाउन इन कॉलम, ठीक है, इन ग्रुप हम लोग बोलते हैं जो,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। ठीक है, ये एक ट्रेंड रहता है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स कि उनको वो याद होगा। ठीक है, क्या क्या रहते हैं, कुछ कुछ जिन बच्चों ने पढ़ लिया है चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, उनको इसके बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका रहता है? फ्लोरीन का, दैट इज 4, राइट। देन ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का ऑलमोस्ट सेम सा रहता है 3, राइट। ब्रोमीन का 2.8, राइट। कार्बन एंड सल्फर का ऑलमोस्ट सेम सा रहता है अराउंड 2.6। देन यू हैव आयोडीन समवेयर अराउंड 2.5। ठीक है, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट सेम सा रहता है अराउंड 2.1, राइट। एंड यू हैव अल्कली मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 या उससे कम रहता है। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखने जरूरी है so as to get an idea, and of course this trend कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, एंड टॉप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड, अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको CH4 में बोला निकालने के लिए, तो उसमें क्या रहेगा? CH4 में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। सो हम लोग यहाँ पर ये जो शेयर्ड पेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या हो जाएंगे? ये सब कार्बन की तरफ शिफ्टेड मानेंगे हम लोग, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ elements to attract electron pair towards itself in a covalent bonded state. That is the simple definition. Electronegativity is the tendency of an element to attract shared pair of electron towards itself in a covalent bonded state. तो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए हैं। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 थी और हाइड्रोजन की 2.1 है। ठीक है, एक पेपर में कहीं पे लिख लो आप अपने साथ में, क्योंकि बार बार आई विल आस्क यू टू रेफर टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी दैट हाइड्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, लाइक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। तो हाइड्रोजन के एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1। ठीक है, हर एक हाइड्रोजन का +1। व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन ने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लिए हैं, राइट, फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -4। ठीक है, इस तरीके से आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन करना रहेगा। ठीक है, हाँ बोलो अद्वैत। सर मुझे ये नहीं समझा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कैसे मिला? वो तो मैं PB3। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है ना ऑक्सीजन। हाँ आयोनिक कंपाउंड में we see oxygen would want to acquire 2 electrons, right? Now थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स में। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2। ठीक है, थोड़ा सा बॉन्डिंग का नॉलेज लगेगा, राइट। सो यहाँ पर आपको CO2 का बॉन्डिंग बनाना आता है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसा रहता है, राइट। कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन ऐसा रहेगा। तो नाउ कैन यू टेल मी, अब क्या हो रहा होगा यहाँ पर? जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इनके साथ में ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका स्टेट क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी, ये राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इट विल बी -2, राइट। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, -2 रहेगा, क्योंकि 2 तो उसके खुद के ही थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो खुद के उसके ही थे, उसने जो अपनी तरफ खींचे वो तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन खींचे ना। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑक्सीजन है उसने भी क्या करा,
उसने भी दो तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, खींचे तो उसने दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ, राइट। सो यहां पर भी अंडरस्टैंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगा, दोनों लेफ्ट वाले और राइट वाले का। व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन ने क्या करा? कार्बन गेव इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने? लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड पे 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ गया। समझ में आया? अच्छा, HCN में ट्राई करो, हाइड्रोजन साइनाइड में, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। राइट, सो यहाँ पर आपने वापस से हाइड्रोजन साइनाइड की बॉन्डिंग देखी, राइट। ये चलो मैं बता देता हूँ, ऐसा रहता है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा। दिस इज द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर अब आपको समझ में आएगा, हाइड्रोजन विल बी लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हो गया +1, राइट। बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन, राइट, बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन ने हाइड्रोजन से तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, बट 2 नाइट्रोजन को दे दिए, सॉरी 3 नाइट्रोजन को दे दिए इनफैक्ट, तो नेट नेट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2। समझ में आया किस तरीके से इसको आंसर करना है? हाँ बोलो रोशन। Sir, will our knowledge up to 10th grade of all radicals suffice for finding the oxidation number? रेडिकल का नॉलेज की जरूरत नहीं है Sir, यहाँ I पर। mean, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो आपने पढ़े हैं, मॉलिक्यूल्स कहना चाह रहे हो क्या आप? sir radical मतलब कि जैसे इधर cyanide था हाइड्रोजन साइनाइड में। हाँ, so okay, hydrogen cyanide is a compound in itself. Like radicals is typically used for those species which have an odd electron, या ठीक है, वो वर्ड आपके लिए चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम बाद ऑर्गेनिक में, बट हाँ इसमें थोड़ा नॉलेज जरूरत रहेगा ऑफ नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। हाउएवर देयर इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, कि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी आता है, ठीक है, तो भी आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। आई विल शो दैट मेथड इन सम टाइम। Okay, sir. Thank you, sir. नाउ H2SO4 में, ठीक है, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या रहेगा? मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर बता देता हूँ जिसको नहीं आता है ड्रॉ करना, ठीक है। दिस इज H2SO4 का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। हाँ बोलो सिद्धार्थ। I wanted to ask that the sum of all oxidation numbers is always 0. इट इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन दैट स्पीशीज। अगर वो कटायन या कटायनिक स्पीशीज है या अनायनिक स्पीशीज है तो उसके चार्ज के बराबर लिखना पड़ेगा। अगर न्यूट्रल है तो 0, यस, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा, इट विल कम एज अ पॉइंट इन सम टाइम। Okay, sir. राइट, सो यहाँ पर कैसा आ रहा है?
+6 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा होगा, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो चलेगा, ठीक है, आइदर दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो इसमें आप नोटिस करोगे, ठीक है, एटम बाय एटम जाना। हाइड्रोजन लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका +1 हो गया। सेम फॉर द राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन, राइट। ऑक्सीजन आप देखोगे, ऑक्सीजन एक तरफ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन है, एक तरफ सिंगल बॉन्डेड सल्फर है, और दोनों से ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये -2 हो गया, राइट। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन भी -2 रहेगा, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ऊपर वाला ऑक्सीजन, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, सो इट विल अगेन अट्रैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डबल बॉन्डेड है ना, तो इट विल अट्रैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो वापस से -2 हो गया। नीचे वाला ऑक्सीजन भी -2 हो गया। एंड नाउ इफ यू लुक एट द सल्फर एटम, तो इसने क्या करा, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, लेफ्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा +6, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, चलो। H2SO3, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। H2SO3 का ये लो स्ट्रक्चर रहता है। फटाफट बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? हाँ, टेल मी रोशन। Great. So I think most of you are giving me the correct answer. The answer will be +4. By looking at the same thought process, यहाँ पर सल्फर एटम ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेफ्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और राइट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहेगा, ठीक है। नाउ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इसका स्ट्रक्चर है। बेस्ड ऑन दिस मुझे बताओ अब क्या क्या ऑक्सीडेशन रहेगा इसमें ऑक्सीजन एटम्स का। चारों एटम का बता दो, चलो चारों का बता दो क्या क्या रहेगा। सो इसमें आपको समझ में आएगा, हाइड्रोजन तो दोनों +1 हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये तो इक्वली शेयर हो गया ना, लाइक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन एंड द राइट हैंड साइड ऑक्सीजन। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल नॉट अज्यूम इट्स ट्रांसफर टू आइदर साइड, we'll let it be in the middle only. Then what we can say about this oxygen, इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं, इसने बस अपने लेफ्ट वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गया। सिमिलरली ये जो राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन है, और सॉरी ऑक्सीजन है, उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गया, इसने राइट वाले हाइड्रोजन से ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो दिस विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर of the atoms. Clear है? Okay. चलो N2H4 में बता दो, N2H4 में what will be the oxidation number of nitrogen? मैं इसका स्ट्रक्चर बना कर दे देता हूं आपको, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, this is how its structure is going to be. नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये हाइड्रोजन तो +1 ईच हो गए। व्हाट अबाउट
ये वाला बॉन्ड ये तो इक्वली शेयर्ड रहेगा, तो व्हाट इज इट दैट आई कैन कमेंट अबाउट दिस नाइट्रोजन, इसने लेफ्ट से एक लिया और नीचे से एक लिया, दोनों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये -2 आ गया और ये वाला नाइट्रोजन भी -2 आ गया, राइट? समझ में आया? All right. Now, as you would have noticed, the best method is to actually draw the structure and come up with the oxidation number. Okay. However, for many students, drawing the structure is not easy. In fact, it is time consuming also, right? So we do have another method for determining oxidation number that is based on certain guidelines that I'll be talking about. Okay. It is not something which is going to be 100% accurate. It is not going to be something which is extremely robust. Sorry. But good enough for many examples. Okay. Best method is to draw the structure. However, we might not know the structure of molecules. We might not know how they are bonded. So इस following guidelines help करेंगे. क्या क्या है एक एक करके हम लोग ये guidelines observe करते हैं. सबसे पहला, oxidation state of an element in uncombined form or elemental form is 0. Right? So जैसे for example, अगर मैं आपसे पूछूंगा oxidation number of zinc in zinc metal, तो आपका आंसर क्या रहेगा? It is 0. If I ask you oxidation number of chlorine in chlorine gas, Cl2 gas, your answer will be 0. ठीक है? Next bullet point notice करना, fluorine is the most electronegative atom. Okay, since it is the most electronegative atom, तो यहाँ पर आप notice करोगे उसका oxidation number is -1 in all the compounds that it is going to form. It is going to take 1 electron. It is the most electronegative atom. इसका electronegativity ऊपर लिखा था अपन ने 4 था. Except in F2. F2 में कितना हो जाएगा इसका oxidation state? Right? ये इसका ऊपर के तरह का एग्जांपल हो गया, elemental form हो गया 0 रहेगा. ठीक है? अच्छा. Then हाइड्रोजन के लिए नोटिस करना, as you would have noticed in many of these examples जो हमने ऊपर डिस्कस करे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, एक्सेप्ट इन सर्टन कंपाउंड्स जहां पर हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक सम मेटल्स. ठीक है, कुछ मेटालिक हाइड्राइड्स में, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करना like NaH में या MgH2 में, right, where the oxidation state is -1. Right? यहां पर हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स H2 के अंदर 0 रहेगा. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में इट विल बी +1 ओनली. देन नेक्स्ट पॉइंट्स नोटिस करना, alkali metals का oxidation number is always +1 only when they are combining with other elements. Alkaline earth metals, it is +2 only, and aluminium is +3 only. This is something which you can safely assume and work with. Then next bullet point में हाँ, इनको always मान के चलना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों के लिए. See, best method is always to draw the structure. ठीक है, that is the best method. However,
बिकॉज नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद ड्राइंग द स्ट्रक्चर्स, तो ये सेट ऑफ रूल्स जो है ये आपको हेल्प करेंगे. अच्छा, नोटिस करना, फॉर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्साइड्स, जो जनरल ऑक्साइड्स हम लोग बात करते हैं उसमें -2 रहता है, एक्सेप्ट इन सम ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, राइट. परऑक्साइड्स में जैसे हमने H2O2 का एग्जांपल लिखा था, राइट, जिसमें O सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, या फिर समथिंग लाइक Na2O2, नाइट्रोजन सोडियम परऑक्साइड, इसमें कैसा रहेगा, राइट, O2 आयन रहेगा, इसको परऑक्साइड आयन कहते हैं. इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहता है. ठीक है. देन देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स लाइक सुपर ऑक्साइड्स, जैसे KO2 है. K2O क्या रहेगा, K2O विल बी एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड. ठीक है, K2O इज नॉर्मल या जनरल ऑक्साइड. इसमें कैसा रहता है, पोटेशियम +1 स्टेट में रहता है और ऑक्सीजन -2 स्टेट में रहता है. ठीक है, दिस इज लाइक अ प्रीटी नॉर्मल कंपाउंड. दिस इज समथिंग न्यू, आई डोंट थिंक आप लोगों ने शायद देखा होगा पहले. अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो यहाँ पर ध्यान में रखना, देयर इज दिस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड कॉल्ड द सुपर ऑक्साइड्स. उसमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी -1/2. ठीक है. देन ओजोनाइड्स आर ऑल्सो सर्टेन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल KO3. इसमें K+ कटायन रहता है एंड O3- अनायन रहता है. ठीक है, तो जो माइनस चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में शेयर्ड रहता है. हेंस वी टेक द ऑक्सीडेशन नंबर एज एन एवरेज वैल्यू विच इज -1/3. ठीक है, ये ध्यान में रखने की चीज है. O2F2 या OF2, ये ऐसे कंपाउंड हो गए जिनमें एक्चुअली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो व्हाट वी फाइंड इज दैट फ्लोरीन तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा एंड ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. ऑक्सीजन वुड बी लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन उससे ज्यादा है. तो ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है तो समटाइम्स ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज वेल. ठीक है, ये O2F2 का स्ट्रक्चर जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का था वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे. लाइक स्ट्रक्चर विल बी समथिंग इन दिस में, FOOF. तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा. देन नोटिस करना हैलोजेंस के बारे में. ठीक है, हैलोजेंस हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 इन जनरल. ठीक है, KO2 का स्ट्रक्चर जो रहेगा इट विल बी समथिंग इन दिस मैनर, K+ कटायन रहेगा और O2- अनायन रहेगा. कटायन अनायन का स्ट्रक्चर रहेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा इसमें. ठीक है, अब O2- जो आयन है दैट इज समथिंग इन विच द ऑक्सीजन, द 2 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, दोनों के साथ में प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, इसका आप लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मत करना. दिस इज नॉट समथिंग विच यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड वाया लोएस्ट स्ट्रक्चर्स. ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में बाद में पढ़ोगे अंडर द टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बाद में आएगा. ठीक है, इसमें अलग तरीके से समझना पड़ता है हाउ इलेक्ट्रॉन्स गेट शेयर्ड. एनीवेज, कमिंग बैक, हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 इन जनरल. ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, फ्लोरीन का तो -1 रहता ही है. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो भी -1 रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. बट इफ दे आर कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन और some more electronegative atom, then they can show positive oxidation states as well. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl में तो क्लोरीन -1 है, बट लेट्स से ICl का मैंने एग्जांपल लिया. ICl में क्या हो जाएगा, अब आयोडीन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा, क्लोरीन का -1 रहेगा. ठीक है, लेट्स से IF5 में कैसा होता है, आयोडीन के अराउंड 5 फ्लोरीन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ईच फ्लोरीन इज -1 and what is happening to iodine, it is losing 5 electrons, 1 to each fluorine.
ठीक है, इट इज नॉट लूजिंग, एक्चुअली इट इज शेयरिंग, बट बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं +5। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल HClO4 है, ठीक है, HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना रहेगा। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन? राइट, समझ में आ रहा है आपको? +7 आ रहा है। All the hydrogens are -2. Sorry, all the oxygens are -2. Hydrogen is +1. Right, and by looking at the structure we can see chlorine के बारे में, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिए, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, राइट में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लेफ्ट में 1 इलेक्ट्रॉन दिया। राइट, तो टोटल इसका +7 आ गया। ठीक है, नाउ अब यहां पर नोटिस करना, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको हाईलाइट करा, the sum of oxidation state of all atoms in a species is equal to the net charge on that species. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो HClO4 में, can you notice that the sum of the oxidation number of all the atoms is equal to 0? Because the net charge on the molecule is also 0. Right? ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी आप नोटिस कर रहे होगे। ठीक है, बट लेट्स से समथिंग लाइक दिस, मैंने आपको दिया सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन में अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ठीक है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर नाउ, यू कैन यूज द रूल्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नीड नॉट ड्रॉ द स्ट्रक्चर। विदाउट ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर आप मुझे बताओ क्या रहेगा आपका आंसर। राइट, सो यहाँ पर आपने रूल यूज करा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट माना X, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इनका सम शुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज। व्हाट इज द नेट चार्ज? -2. So when you do that calculation, you will get the answer as +6. ठीक है, अच्छा, ये ऑक्सिलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना आ रहा है। C2O4 2- आयन जो है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? राइट, +3 आ रहा है। ऑक्सीजन का -2 रहता है, कार्बन के 2 एटम्स है, दे आर X, 4 ऑक्सीजन के एटम्स, दे आर ऑल -2, सम इसका इक्वल टू -2, सो यू गेट X का आंसर एज +3। काफी सिंपल। अच्छा, KMnO4 में बताओ। हाँ, बोलो देवांश। 4 into 2 minus -2 क्यों करते हैं हम लोग? इसमें मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, कार्बन के 2 एटम्स हैं, राइट, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X माना हुआ है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 माना हुआ है, तो सबका सम अगर मैं करूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना। पर ऑक्सीजन का ये ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है करके कैसे मालूम पड़ा? ये ऊपर लिखा ना अपन ने रूल्स में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्साइड इज -2, आपको यही मानना है। अच्छा,
तो एक वैल्यू याद रहना चाहिए तो दूसरा वाला आएगा ऐसा। हाँ, ओके। तो यहाँ पे देखो ना, ऊपर मैंने क्या करा है, कुछ जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उनका मैंने एक रूल या गाइडलाइन बना दिया है, और जिनका हमको रूल या गाइडलाइन नहीं है वो हम लोग फिर इस पॉइंट के बेसिस पे आंसर कर लेंगे। सम सबका जो है मिलाकर शुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन दैट स्पीशीज। ओके सर। ठीक है, अब जैसे KMnO4 है, KMnO4 में आपको पोटेशियम के लिए रूल पता है, अल्कली मेटल का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, +1। ऑक्सीजन का आपको रूल पता है, -2 लेना है। तो जो ये अननोन है मैंगनीज, इसका आप बता पाओगे, तो क्या रहेगा आंसर आपका, +7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, चलो एक क्वेश्चन आंसर करो। ये KVP में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर इट नाउ। ये लिखा है यहाँ पर Cr2O7 2- एंड ClO3-। राइट, सो Cr2O7 2- में क्या रहेगा, क्रोमियम का हमने मान लिया X, और 7 ऑक्सीजन के आइटम है, ईच इज -2, इन सबका सम मिलाकर -2 हो जाना चाहिए। तो इसे सॉल्व करने पर X कितना आ रहा है, +6। राइट, ClO3- में क्या हो रहा है, क्लोरीन का मान लिया X, और ऑक्सीजन कितने 3, हर एक का -2 शुड बी इक्वल टू -1, दैट इज द नेट चार्ज ऑन द स्पीशीज। तो इससे आ जाएगा X का आंसर कितना आ रहा है, +5। तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, काफी सिंपल। अच्छा, थोड़ा सा कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा FeSO4 में आयरन का और सल्फर का दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताओ। ठीक है, FeSO4 में आयरन का एज वेल एज सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे। नाउ अब इसमें कैसा रहता है, आपको ना तो आयरन का रूल पता है, ना आपको सल्फर का रूल पता है, आपको तो सिर्फ ऑक्सीजन का रूल पता था। तो आप अटक गए क्योंकि आपके पास में 2 अननोन्स हो गए, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, बट यहाँ पर a little bit knowledge of cation anions of the salt comes in handy, right? So you, if are familiar with some basics of your class 10th chemistry, then you should be able to comment that this is made up of Fe2+ ion and SO4 2- ion. These are the cation anions of this salt, and based on that you can say oxidation number of Fe is going to be +2, it will be losing 2 electrons. And sulfate के अंदर you can now apply the rule that we have discussed above. Some of the oxidation states of the atoms should be equal to the net charge on the ion or the molecule. Right, so यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा X will be +6. Right, समझ में आई? Is this clear? ठीक है, इसमें बता दो क्या रहेगा आयरन और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। So यहाँ पर again you must have this knowledge that यहाँ पर फेरिक सल्फेट में 2 Fe3+ के आयन होंगे एंड 3 सल्फेट के अनायन होंगे, राइट, ईच Fe is +3, एंड देन इन द सल्फेट आयन जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। ठीक है, राइट, चलो एक और KVY का क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो. थोड़ा सा ब्लर है बट आई होप यू कैन मेक इट आउट. राइट, सो H2S में कैसा है? -2. कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड इज समथिंग विच इज, से आपको रूल नहीं पता है इस केस में, बट स्टिल थोड़ा सा आप इसमें एक आइडिया लगा सकते हो. कार्बन डाइऑक्साइड इज समथिंग लाइक कार्बन डाइसल्फाइड ओनली. जैसे CO2 का स्ट्रक्चर होता था वैसे कार्बन डाइसल्फाइड का होता है. तो यहाँ पर कैसा रहता है? कार्बन और सल्फर. ठीक है, इसमें वैसे तो वी से दैट ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन और सल्फर की. ठीक है, बट इफ आई वाज टू स्टिल टेक अ गेस तो मैं यहाँ पर सल्फर को -2 बोल दूंगा एंड कार्बन को +4 बोल दूंगा. ठीक है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलमोस्ट द सेम, बट अगर कंपैरिजन करवा ही रहे तो सल्फर इज स्लाइटली मोर. ठीक है, तो यहाँ पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हुआ. ठीक है, Na2SO4 में कैसा रहेगा? 2 सोडियम के एटम्स हैं जिनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर अननोन है, और 4 ऑक्सीडेशन के एटम्स हैं जिनका -2 है. इनका सम 0 के बराबर होना चाहिए. तो कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? +6. यहाँ Na2SO3 में, सोडियम सल्फाइड में सेम थॉट प्रोसेस. 2 सोडियम के एटम है, +1, सल्फर का X, और 3 ऑक्सीजन के एटम है, each with oxidation state -2, sum should be equal to 0. तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा X is equal to +4. तो ये डी ऑप्शन आपका आंसर होगा. ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर करना रहेगा. क्लियर है? अच्छा, अब नोटिस करना, sometimes these rules give fractional oxidation numbers which are okay. They are going to be the average oxidation numbers. जैसे आपने ये Pb3O4 के बारे में पढ़ा था ऊपर, राइट? तो इसमें अगर हम वही रूल लगाएं जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, 3 times X plus 4 times -2 should be equal to 0. We get the answer of X as 8/3, right? And that is something okay as an answer because it is an average value. ठीक है, for the actual values, as I said, we need more info. We should have that knowledge that Pb3O4 is a mixed oxide of PbO and PbO2 in 2:1 ratio, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था. Right? Otherwise यहाँ पे +8/3 भी आप लिखोगे तो चलेगा आंसर. It's absolutely okay. Right? Carbon suboxide में what is the oxidation number of carbon? Right? If you use the rules, तो आंसर आ जाएगा आपका +4/3, which is ठीक है, correct. It's an average value, no problem using it. However, actual oxidation state would require you to know the structure of the compound. ठीक है. Now, notice करना, sometimes these rules also give incorrect oxidation number. जैसे अगर आप CrO5, ठीक है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. CrO5 का अगर मैं आपसे पूछूं what would be the oxidation number, तो what will be your answer? +10 as per the rules that we are discussing. However, +10 seems to be too much. इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, लाइक क्रोमियम के पास में इतने इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते,
वैलेंस शेल में, तो थोड़ा सा लाइक गड़बड़ है। तो जो एक्चुअल आंसर रहेगा, ट्रू आंसर रहेगा, वो तो स्ट्रक्चर से पता पड़ेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको स्ट्रक्चर आता नहीं है, दैट इज ओके, राइट। सो ये जो गाइडलाइंस बताई है मैंने, दीज आर एज आई सेड गाइडलाइंस ही है, रूल्स नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट दैट एक्यूरेट। ठीक है, समटाइम्स दे डू गिव यू इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब चलो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, तो आप बता सकते हो व्हाट शुड बी द आंसर। राइट, सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये ऊपर वाला ऑक्सीजन जो है -2 रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से खींच लेगा। राइट, देन ये परऑक्सी ऑक्सीजन हो गए लेफ्ट और राइट में, तो ये परऑक्सी ऑक्सीजन तो सब -1 है। नाउ यू गेट द करेक्ट आंसर दैट क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +6। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन देगा और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को एक, राइट वाले ऑक्सीजन को एक। ठीक है, अच्छा, H2SO5 में बताओ मुझे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कमिंग आउट टू बी इन H2SO5? ठीक है, क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO5 के अंदर? +8 आ रहा है as per the rules. Now seems a little fishy, like सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही 6 होते हैं, तो उससे ज्यादा कैसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है सल्फर? 8 कैसे हो सकता है? थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, राइट। सो क्या हो रहा होगा, देयर मस्ट बी समथिंग इन द स्ट्रक्चर दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग, राइट। सो मैं यहाँ पे आपके सामने इसका स्ट्रक्चर शेयर करता हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब बताओ जरा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है अब आपको? इसमें क्या था, हम लोगों ने रूल के हिसाब से, जो गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग कर रहे थे, उसमें क्या गड़बड़ हो रही थी? द गड़बड़ दैट वाज हैपनिंग वाज वी वर अज्यूमिंग सारे के सारे ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड है, सारे के सारे -2 है। हाउएवर स्ट्रक्चर से पता पड़ा दैट कुछ ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है, सारे के सारे ऑक्सीजन आर नॉट नॉर्मल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो वो हमें स्ट्रक्चर से ही पता पड़ता है। ठीक है, सो दैट्स ओके। यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? ये हाइड्रोजन +1, ये वाला हाइड्रोजन भी +1, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन -2, नीचे वाला ऑक्सीजन -2, लेफ्ट वाला भी -2, बट ये वाले जो ऑक्सीजन है ये -1 रहेंगे। ठीक है, दे विल बी द परऑक्साइड ऑक्सीजन्स। एंड अगेन अब आप सल्फर का नोटिस करोगे तो +6 आ रहा है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट में 1 और राइट में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट। हाँ, बोलो अरविंद। सर तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मतलब अगर हम लोगों ने एक मतलब हमारा जो नॉर्मल मेथड है कैलकुलेशन का, उससे अगर हम लोगों को मतलब जैसे सल्फर का 6 था और हम लोग को 8 आ गया, और क्रोमियम का भी 6 ही था शायद, नहीं सॉरी क्रोमियम का 8 था और हम लोग को ऐसा मतलब जो भी था, तो अगर उसके जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे एक्सीड हो गया तो हम लोग सीधा मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। हाँ, लाइक यू कैन, इट्स अ सेफ चॉइस। ओके सर, फिर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं ना? हाँ, मतलब वैसे भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आई डोंट नो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। नाउ
अब यहाँ पे आप ये H2S2O8 में देखो क्या आ रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रहा है, राइट। बट अगेन +6 से ज्यादा नहीं हो सकता, देयर इज समथिंग इन द स्ट्रक्चर। तो ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने, निकालो इसमें क्या रहेगा आंसर। हाँ बोलो स्मृति। सर सर हमने वो जो ऊपर C2O3 का देखा, तो हम्म। उसमें कार्बन में दोनों होता है ना, +2 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, तो Yes, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर में जो मेजॉरिटी में होता है वो लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, या तो आप ऐसा बोलो कि आउट ऑफ द 3 कार्बन एटम्स 2 आर +2 and 1 is 0, right? That will be a way of answering. Or you say that the average oxidation number of carbon in the compound is +4/3. ओके सर, ओके। हाँ बोलो तनिष। सर हाँ सर मेरे को समझ नहीं आया सर, आपने मालूम है अभी वो एस के वहाँ पे 6+ लिखा था, यहाँ पर समझ लो, देखो ये जो सल्फर है ऊपर 2 हाँ सर, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नीचे हाँ 2 सर, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेफ्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और राइट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो +6 होगा ना। बट सर वो ऐसा क्यों कर रहा है सर, मतलब वो बीच में क्यों रह रहा है, मतलब सल्फर सल्फर को कॉर्नर में मतलब होना चाहिए ना सर, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ये। आप 10th क्लास में हो ना अभी? नहीं सर। 11th में हो? कौन से बैच में हो? हाँ सर अभी आपके जेनिथ 2। जेनेट 2 में ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ। तुम्हारे दिमाग में अभी वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन का भूत निकालना पड़ेगा मेरे को पहले, उसके लिए थोड़ा सा हमको एक हवन करना पड़ता है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन का भूत निकालने के लिए। ओके सर, धीरे धीरे आएगा। ओके सर। नाउ यहाँ पर अगेन इन द सेम एग्जाम्पल, सल्फर का यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे +6 रहेगा। इसमें जो कल्प्रेट है वो ये बीच वाले ऑक्सीजन 2 हैं, दीज आर परऑक्सी ऑक्सीजन्स, दे आर द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलराइट। नाउ विद दिस बैकग्राउंड अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने आ गए। ठीक है, विद ऑफ कोर्स अ डिस्क्लेमर, अ कैविएट that the best method is to draw the structure only. Right? However, at times you will not be able to know the structure of many compounds. You should be able to then use the guidelines that I have discussed with you to come up with the oxidation number. Now, with that discussed, with that done, अब हम लोग समझ सकते हैं what is meant by redox reactions. Redox reactions are those reactions in which oxidation number of elements undergo a change. Right? जैसे for example यहाँ पर आप notice करोगे the following example in front of you, like HCl plus NaOH giving NaCl plus H2O. Simple acid base reaction है। इसमें if I ask you to compute the oxidation number of the elements, हाइड्रोजन का HCl में +1, राइट, और क्लोरीन का कितना रहेगा -1। NaOH में सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, राइट। NaCl में सोडियम +1 एंड क्लोरीन -1। H2O में ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1, राइट। देयर आर, as I have written पहले भी, there are 2 H atoms each in oxidation state +1, है ना। Now इस reaction में do you see any of the elements undergoing a change in their oxidation number? So this is a non-redox reaction.
ठीक है, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. अच्छा, इस वाले में देखना, व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट एग्जांपल. कंप्यूट करो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या आ रहे हैं. ये जिंक जो है अपने एलिमेंटल फॉर्म में कैसा रहेगा, 0, राइट. HCl में हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1. ZnCl2 में क्लोरीन -1 है, तो जिंक कितना हो गया, +2, क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम्स है ना -1 में. एंड H2 में हाइड्रोजन इज 0, राइट. So do you see any elements का change in oxidation state? Right. So you see, yes, it's an example of a redox reaction. In fact, यहाँ पे अगर आप थोड़ा और details notice करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, that zinc undergoes a change from 0 to +2 and hydrogen goes a change from +1 to 0. So zinc is undergoing oxidation. ठीक है, ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है. Zinc is undergoing oxidation, ठीक है, itself it is undergoing oxidation, and सामने वाले को reduce कर रहा है, तो it is also called as a reducing agent or reductant. जो species खुद oxidize होती है वो सामने वाले को reduce करेगी तो उसको reducing agent बोलते हैं या reductant. वैसे यहाँ पर आप H या फिर HCl, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, आप नोटिस करोगे इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, है कि नहीं. सो वी से HCl और H इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट. ठीक है, यहां पर क्लोरीन एटम के साथ में क्या हो रहा है, क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रहा है. क्लोरीन एटम डज नॉट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. ऐसे एटम्स को, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड स्पेक्टेटर स्पीशीज. दे आर कॉल्ड एज स्पेक्टेटर्स. ठीक है, देसी लैंग्वेज में बाराती. ठीक है, समझ में आया ये. नाउ चलो थोड़ा सा मेहनत करो आप लोग, आइडेंटिफाई करो whether these are redox reactions or not. Right, so पहला वाला कैसा आ रहा है, फर्स्ट वन इज कमिंग आउट टू बी अ नॉन रिडॉक्स.
यहाँ पे आप नोटिस करोगे नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, +1, +5, -2. So it comes out to be non-redox. What about this one? इसमें आप नोटिस करोगे अब, so you will find zinc 0, सोडियम +1, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2. NaOH में सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1. NaZnO2 में सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, तो इससे Zn आपका +2 आ जाता है. अमोनिया में हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन -3, H2O में हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2. So can you see zinc is undergoing oxidation and so nitrogen is undergoing reduction. Right? You identify what is the oxidizing agent and the reducing agent. Right? Okay. Next वाले example में बता दो. हाँ, राइट. ये NaOH वगैरह स्पेक्टेटर हो गया, H2O स्पेक्टेटर हो गया, वो सब ठीक है. तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, इफ यू विल एक्चुअली थिंक अ बिट, इट्स अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन. कैसे? थोड़ा कटायन आनायन का नॉलेज लगेगा. दिस कम्स आउट टू बी अ नॉन रिडॉक्स. ठीक है, आपको पता पड़ेगा यहाँ पर Pb +2 में है, या राइट हैंड साइड Pb +2 में ही है. ठीक है, NO3- आयन यहाँ भी है, NO3- आयन यहाँ पे भी है. सो नाइट्रोजन यहाँ पे +5, यहाँ पर भी +5 है. पोटेशियम इधर +1 है, इधर भी +1 है. CrO4 2- आयन यहाँ पर भी है, CrO4 2- आयन यहाँ पर भी है. राइट. सो ऑक्सीजन -2, क्रोमियम +6, ऑक्सीजन -2, क्रोमियम +6. So none of the elements undergo a change in oxidation state. It's like, it's a non-redox reaction. समझ में आया ये? चलो अगला वाला ट्राई कर लो. राइट, यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है. ऑक्सीजन सॉरी आयोडीन 0 से -1 जा रहा है. राइट. तो अगर डेफिनेटली आयोडीन का चेंज हो रहा होगा, आयोडीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, तो कोई ना कोई तो ऑक्सीडाइज हो ही रहा होगा. ठीक है, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर वो भी आप बता सकते हो. सोडियम तो +1 का +1 में ही रहेगा, ऑक्सीजन भी -2 का -2 में ही रह रहा है. यहाँ पर आप नोटिस करोगे सल्फर +2 से +2.5 जा रहा है. ठीक है, एवरेज वैल्यूज ही ले रहा हूँ मैं. एक्चुअल वैल्यूज तो स्ट्रक्चर से पता पड़ेंगी, बट इवन एवरेज इज फाइन. ठीक है, नोटिंग डाउन एवरेज वैल्यूज इज एब्सोल्युटली ओके. एवरेज वैल्यूज के हिसाब से बताना ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, इट्स फाइन. ठीक है, समझ में आया ये एग्जांपल भी? इज दिस क्लियर?
कुछ कहना है कविश? सर वो रिड्यूसिंग एजेंट जब बोलेंगे तो पूरे कंपाउंड को बोलेंगे या जो आयन इन्वॉल्व है सिर्फ वो? दोनों चल जाता है। जैसे यहाँ पर आई कैन से I2 इज माई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर आई कैन से दिस कंपाउंड सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं इसको, दिस इज माई रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर सल्फर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ऐसे भी बोल सकता है, दोनों चलता है। ठीक है, हाँ बोलो सिद्धार्थ। Yes, sir. Sir, I wanted to ask that if there is a singular element in a reaction, so can we easily conclude that it is a redox reaction? हाँ हाँ, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स हवा में थोड़ा ना रहेंगे, कोई दे रहा होगा तो कोई ले भी रहा होगा ना। yes, sir. And sir, can you repeat this example once again, sir? Like I got disconnected for 1 minute. इसमें कहाँ अटक गए? लाइक बस आइडेंटिफाई करना था कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो व्हाइल सीइंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स वी आर सीइंग आयोडीन का चेंज हो रहा है और सल्फर का चेंज हो रहा है ना? पता पड़ गया ना? अब यहाँ पे आप नोटिस करना, कुछ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नाम ध्यान में रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सो एक होता है सिंपल, जो कि हम ऊपर डिस्कस करते आ रहे थे। ठीक है, सिंपल रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे होते हैं? दैट वन सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड द अदर अंडरगोज रिडक्शन। ठीक है, जैसा हम लोगों ने ऊपर काफी सारे एग्जांपल नोटिस कर लिए, तो जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो इसमें एक एलिमेंट जो है आयरन, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, एंड एक एलिमेंट है मैंगनीज, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। इट्स लाइक अ सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, समटाइम्स you come across reactions, redox reactions that are called as disproportionation reaction. Right? What is meant by disproportionation reaction? ये आप notice करोगे, for example in this case same element undergoes oxidation as well as reduction. तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप नोटिस करोगे ब्रोमीन जो है उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रहा है। Such reactions are called as disproportionation reaction. You have examples like, or another type called comproportionation. Comproportionation is basically a reverse of disproportionation. इसमें again same ही element oxidize या reduce हो रहा होता है, but from multiple oxidation states it is going into one particular oxidation state. Disproportionation में क्या हो रहा था? एक particular oxidation state से it was going into a higher and a lower oxidation state. Then there is another type which is called as intramolecular redox reaction या auto redox reaction. इसमें क्या होता है? Different elements would be undergoing oxidation and reduction, right? But they will be part of the same molecule. जैसे अगर हम KClO3 को हीट करते हैं उससे KCl और O2 बनता है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, -2 से 0 जा रहा है. So both the elements which are undergoing oxidation and reduction are part of the same compound, same molecule. So this is called as intramolecular redox या auto redox. ठीक है, sometimes इसका opposite भी होता है. जैसे for example you say Mg and oxygen gas combined to give you MgO. तो यहाँ पे आप नोटिस करो MgO में क्या हो रहा है? Mg is undergoing oxidation and oxygen gas or oxygen element is undergoing reduction, right? They are also part of the same compound over here on the right hand side. So this is like the reverse of intramolecular redox. ठीक है, तो ये आपके common types of redox reaction. ठीक है, are there some more varieties? Of course there are more. मतलब theoretically मैं
और भी वैरायटीज क्रिएट कर सकता हूं आपके लिए। एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, एक डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, लाइक कुछ भी रैंडम क्रिएट कर सकता हूं, बट यू डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल दैट कॉम्प्लिकेशंस। जस्ट रिमेंबर दीज 4 टाइप्स। ठीक, 4 टाइप्स जो है, सिंपल, डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम्प्रपोर्शनेशन एंड इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। इन 4 का नाम ध्यान रखना। ठीक है, नाउ अब नोटिस करना, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, रट्टा दो। इन रिडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर, इन मोल कंसेप्ट पार्ट 2 चैप्टर, some knowledge about common oxidizing agents and reducing agents is expected from you. ठीक है, लैब्स में कॉमनली यूज होने वाले जो रिएजेंट्स होते हैं, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपो सॉल्यूशंस, सो ये कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि लैब्स में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, आपके स्कूल की लैब के अंदर भी, जो कि ऑफ कोर्स अभी तक आपको देखने को मिली नहीं होगी, नए स्कूल की, नए कॉलेज की, इनफैक्ट उसमें भी ये सब बहुत कॉमनली यूज होने वाले रिएजेंट्स होते हैं। तो इन रिएजेंट्स के बारे में नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड होती है कि ये तो पता ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में कुछ रिएक्शंस ऐसे पढ़े थे विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि ये तो पता होंगे, राइट? जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है, राइट? हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है, तो उससे CO2 एंड वाटर बनना है, इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड नॉलेज। ठीक है, या फिर एसिड प्लस बेस से क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, इज लाइक एक्सपेक्टेड नॉलेज। ठीक है, सो देयर आर सम रिएक्शंस, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि पता ही होगा। वैसे ही आप यहाँ पे नोटिस करोगे दैट देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स जिनका नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहला नोटिस करना इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, या पोटेशियम भी छोड़ दो तो चलेगा। परमैंगनेट आयन, MnO4 माइनस आयन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें मैंगनीज खुद +7 स्टेट में रहता है। नाउ अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिड्यूस होता होगा, है कि नहीं? अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिड्यूस होगा, और ये खुद रिड्यूस होकर, नोटिस करना, +7 से +2 में चला जाता है अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो, या अगर न्यूट्रल या माइल्ड अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो ये +7 से +4 में आ जाता है। ठीक है, या फिर अगर कोई स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रहा होता है तो ये +7 से +6 में आ जाता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड नॉलेज रहेगी आपसे, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसका रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ होगा, ये मैं मीडियम के बारे में बात कर रहा हूँ। द मीडियम या मीडियम का pH जो है एक्चुअली दैट अफेक्ट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच इट गोज टू। ठीक है, उसके पीछे के रीजंस हैं, उसके पीछे के थर्मोडायनेमिक रीजंस होते हैं, that why it is showing this, why it is not showing that. That is all something which is embedded into thermodynamics, because that is what gives us the ultimate answer of which reactions happen and which don't. However, you don't need to get into all that detail right now. You need to remember this piece of information. MnO4 minus permanganate ion undergoes reduction
like it's an oxidizing agent, so it itself will undergo reduction. It will go to +2 state if it is an acidic medium, +4 in neutral and +6 in strongly alkaline medium. तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट एक मिनट ना, मैंने एक्चुअली आपको आई थिंक एक क्वेश्चन कराना था, ठीक है, ये आप नोटिस कर लो बिफोर आई रिज्यूम विद द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये केवीपीवाई का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? फटाफट आंसर बता दो एक बार। काफी इजी है। जीरो से +2 जा रहा है कैल्शियम और 0 से -2 जा रहा है ना। बाकी इन सब में आप देखोगे, if you will spend some time on this, no change in oxidation state of elements, ठीक है। हाँ, नहीं ऐसा कंपल्शन नहीं है लक्ष्मी। आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स जहां पे इट माइट नॉट हैपन। हाँ बोलो प्रणव। Sir, what is the word written before of common oxidizing below? List of common. Okay, sir, list. And sir, one more thing, sir, the Ca plus O2 reaction. Sir, it is auto redox reaction? Reverse of that. Okay. Oh, yes, yes. Okay, sir. Thank you. Now, coming back, यहाँ पर हम लोग कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, मैंगनीज परमैंगनेट आयन, इन मैंगनीज इट अंडरगोज दिस चेंज, ठीक है। ये तो आपको मस्ट याद होना ही चाहिए। देन यहाँ पे आप नोटिस करना, मैंने कुछ कॉमन रिएक्शंस लिखी हुई हैं ऑफ हाउ permanganate ion is reducing certain, oxidizing certain species, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स, ये रिएक्शंस ध्यान में रख लेना, ठीक है, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड, ठीक है। ऐसा होगा दैट दे माइट नॉट, मैं आपको कराऊंगा थोड़े टाइम में, आई विल गिव यू सम केवीपीवाई क्वेश्चंस आल्सो। इनफैक्ट इट इज नॉट जस्ट केवीपीवाई, इनफैक्ट जेई में भी, जेई एडवांस में भी आपको सिर्फ इतना बोल देंगे कि यू नो ये जो परमैंगनेट आयन है ये ऑक्सिलेट आयन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। अब रिएक्ट करके क्या बनेगा वो आपसे एक्सपेक्टेड नॉलेज होगी। ये MnO4 माइनस C2O4 2- से रिएक्ट कर खुद Mn+2 में चला जाता है और ऑक्सिलेट आयन जो है C2O4 2- इसको CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ये मैंने नाम लिखा है, इस C2O4 2- आयन को ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं। FeC2O4 को फेरस ऑक्सिलेट कहते हैं, ठीक है। इसमें आप नोटिस करोगे तो इसमें जो MnO4- आयन है, परमैंगनेट आयन है, वो आयरन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है +2 से +3 और ऑक्सिलेट को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सिलेट में जो कार्बन है एक्चुअली उसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है फ्रॉम +3 to +4, ठीक है। सो इट्स अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो सिद्धार्थ। सर आपने वो FeC2O4 में Fe का जो ऑक्सीडाइजिंग नंबर है वो सब कैसे निकाला, मतलब उसको स्प्लिट करके निकाला है? हाँ, मतलब अगेन इसमें आपको कैटायन आनायन की नॉलेज लगेगी। ओके, देखिए FeC2O4 है ना, तो इसमें आपको ये एक आइडिया कि ये ऑक्सिलेट 2- आयन होता है, उससे आपको पता पड़ेगा कि Fe+2 आयन होता है। ओके।
ठीक है, Yes. that is something which is like cation anion का knowledge. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स ध्यान में रखना. Then there is another oxidizing agent, another important one, which is potassium dichromate or just dichromate. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बता देता हूँ. ये जो परमैंगनेट आयन होता है, ये कौन से कलर का होता है, आप लोगों को आइडिया होगा? ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है. इसका कलर भी ध्यान रहेगा तो अच्छा है. ये जो Mn के आयन्स है +2 +4 +6, ये कलरलेस होते हैं. ठीक है, दीज आर कलरलेस. ठीक है, अच्छा. देन यहां पर आप नोटिस करना डाइक्रोमेट आयन. दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Cr2O7 2-. इसमें क्रोमियम कैसा है, +6 स्टेट में है. ठीक है, एंड ये यस ऑरेंज कलर का होता है. राइट, दिस इज ऑरेंज इन कलर. एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इसका एसिडिक मीडियम में लेते हैं रिएक्शन. इन एसिडिक मीडियम इट अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3. ठीक है, ध्यान में रखना, +6 से ये +3 में चला जाता है. ठीक है, इसका इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, इसका कलर Cr+3 आयन का कलर ग्रीन होता है. ठीक है, CrO3 भी एक स्पीशीज होती है, CrO3 भी लिख सकते हो आप, बट दैट्स लाइक यू कैन से नॉट अ often used species. The more often used oxidizing agent is this Cr2O7 2-, dichromate ion. ठीक है, इसके भी आप कुछ कॉमन एग्जांपल्स नोटिस करना. ठीक है, और ये ध्यान में रखना. ठीक है, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे. और भी बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर लाइक यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट. देन यहाँ पे आप नोटिस करना रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में. ये नॉट Cl वो मैं आपको बताऊंगा, आप बाद में पढ़ोगे. अगेन थर्मोडायनेमिक्स इज द रीजन. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये क्लोराइड आयन या फ्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता. ठीक है, ब्रोमाइड आयोडाइड को कर देगा, बट इसमें इतना दम नहीं है कि ये क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर पाए. वो थर्मोडायनेमिक्स के पीछे के रीजन होते हैं. हाँ, देयर इज अनदर वन विच इज HNO3, बट ठीक है, आपके लिए अभी इतना काफी है. ठीक है, इतना आप ध्यान में रख लो. देन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स में नोटिस करना. रिड्यूसिंग एजेंट्स में कैसा रहेगा, इनफैक्ट मैं यहाँ पर इसमें HNO3 का भी लिख ही देता हूँ. HNO3 का कैसा रहेगा, ऑल्दो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ध्यान में रख लोगे तो वो अपने आप में काफी है. You would not need more than that.
बट ये थोड़ा सा अगर आप और एक्स्ट्रा नॉलेज लिखना चाहोगे यहाँ पर, HNO3, that is also a strong oxidizing agent. ठीक है, and then these halogens also act as good oxidizing agents. ठीक है, fluorine being a really good one. ठीक है, नहीं, X2 stands for halogen only. ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए देखो ये रहेगा, एक साथ खूब सारा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप लोग शायद याद भी नहीं रख पाओ, तो इट्स ओके। आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट ये तो मस्ट याद रखना, ठीक है। HNO3 X2 ये चलेगा, नहीं भी याद रखोगे तो इट्स ओके। देन रिड्यूसिंग एजेंट्स में आप I- ध्यान में रखना, रिएक्शन हमने ऊपर देखा ही हुआ है, I- would go to I2 in acidic medium, एंड ये वाला एक जरूर ध्यान में रख लेना, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, काफी कॉमनली यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपो सोल्यूशन। Na2S2O3, इसमें कैसा रहता है, सल्फर गोज फ्रॉम +2 to +2.5 इन एसिडिक मीडियम में, और +6 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। इसके कुछ कॉमन रिएक्शंस है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। जेई एडवांस के लिए तो ये सब डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, KVPY के लिए, ठीक है, ऊपर ऊपर से ध्यान में रख लेना, ये चलेगा। देन हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है H2O2, उसके बारे में ध्यान रखना, दैट इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नहीं, नीट में भी काम आते हैं, मतलब ये जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स है जो आपके 12th क्लास के एग्जाम्स होंगे, उसमें ये कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शंस, इनके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स, दे आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है। ये H2O2 के बारे में नोटिस करना, H2O2 इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नोटिस करना एज रिड्यूसिंग एजेंट, H2O2 itself will undergo oxidation, ठीक है। H2O2 will undergo oxidation, तो क्या बनाएगा, what will be the outcome, it will itself undergo oxidation to O2, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एंड एज रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे आप सॉरी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप नोटिस करना, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट it undergoes reduction from H2O to itself undergoes reduction, it will go to H2O, ठीक है, -1 से -2 स्टेट, ठीक है। Is this clear?
then ठीक है, ये कुछ disproportionation reactions हैं, the common ones which you might see. ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप notice करोगे that I have not bothered to write complete reactions, neither I have bothered to balance them out. ठीक है, that is not something which is a requirement as such. This is something which I have focused only on the redox atoms. Spectators वगैरह के लिए I have not focused. ठीक है, just focus on those. ये common example देखो क्या है, धीरे धीरे practice के साथ में याद होते हैं. जब JEE एडवांस में आप लोग क्वेश्चंस करोगे काफी सारे, तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे, एंड थ्रू क्वेश्चंस धीरे धीरे याद भी होने लग जाते हैं. KVPY के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, जिसमें एटलीस्ट आई एम आस्किंग यू टू प्रायोरिटाइज परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट एज रियली रियली इंपॉर्टेंट. ये तो डेफिनेटली ध्यान में रखना. बाकी नहीं भी याद रहे तो चलेगा, इट्स ओके. दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हाँ, बोलो देवांशी. Yes, sir. So you said that Mn2 plus and Mn6 plus and Mn4 plus, they are all colorless, right? So, but using electronic configuration, they show the presence of unpaired electrons. So, देखो Mn2 plus तो डेफिनेटली कलरलेस होता है. शायद Mn6 plus ग्रीन है, आई एम नॉट 100% श्योर. एंड शायद Mn4 plus कलरलेस होता है, ऑल्दो विल नीड टू लाइक चेक एंड सी. मुझे याद नहीं, मुझे इसका तो पक्के से याद है कि Mn+2 कलरलेस होता है. ठीक है, मोस्टली वी डील विद एसिडिक मीडियम रिएक्शंस ओनली, बट हाँ, so Mn4 plus is brownish. हो सकता है ब्राउनिश होता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. Okay, so like we won't classify it as colorless, right? The last two. हाँ, वो फिर आपके जो भी कलर है, रेस्पेक्टिव कलर. ठीक है सर. Sir, हाँ, sir, this MnO4 act as an indicator, sir. हाँ हाँ, वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है. Sir, and also, sir, you gave the structure formula for CR2O7, but for this, do we need to learn the structure formula, sir? Sir, I mean that structure of that compound. ये Cr2O7 2 minus का. No, sir, that you gave, sir. Similarly, for MnO4, do we need to learn, sir? MnO4 माइनस का मतलब यही है, बस ये Mn बना दिया और 4 ऑक्सीजन लगा दिया उसके अराउंड, एक सिंगल बॉन्डेड लगा देना O माइनस, बस ऐसा ही है. Okay, sir. Sir, and also you told that, sir, could you scroll down, sir? हाँ, अच्छा, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है. अब इसके बाद में आई विल बी टेकिंग यू थ्रू इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट. ठीक है, आफ्टर दिस आई विल मेक यू प्रैक्टिस हाउ कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, बट नॉट यूजिंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन, यूजिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो दैट विल बी what we'll be studying next in this chapter, and then we'll be done with this chapter. उसके बाद हम लोग next chapter pick up कर सकते हैं. ठीक है, हाँ. Sir, that is that equilibrium chapter, sir. नहीं, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को. Both are different. हाँ, Different. Okay. ठीक है. All right. Any other question? नहीं, वही कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है अभी. आपका हो सकता है कि ऑर्गेनिक का भी शुरू हो जाए, तो वो अभी कंफर्म नहीं पता है, बट दैट इज समथिंग व्हिच विल बी देयर. नहीं, देयर इज नथिंग लाइक टोटल चैप्टर्स डज नॉट मैटर. केवीपीवाई में इतने चैप्टर्स हैं कि आप पूरे तो कभी कर ही नहीं सकते हो. फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट वंस. ठीक है, हाँ, बोलो अर्णव. सर मेरे को ये डाउट था कि बीच में हम लोग का एक जगह पे ऑक्सीडेशन गलत आ रहा था ना, ऑक्सीडेशन नंबर. सर, तो वो इसलिए आ रहा था ना क्योंकि ऑक्सीजन का उसी
मॉलिक्यूल में एक में -2 और एक में -1 है। हाँ। ओके सर, तो फिर हम एवरेज लेके कर सकते हैं ना? नहीं मतलब एवरेज किसका एवरेज लोगे? ऑक्सीजन का एवरेज लेके फिर। नहीं नहीं नहीं। ओके सर। बोलो कृति। Yes, sir. So could you scroll up to incorrect oxidation number? Incorrect oxidation number. Yes. Sir, in the second example, in Keros acid, sir, you are getting +6 as sulfur. I am getting it as +5. Like, how is the left side oxygen getting -2? Shouldn't it be -1? क्यों? एक हाइड्रोजन से ले रहा है और एक सल्फर से ले रहा है। Oh, right. I forgot hydrogen. कोई नहीं। ठीक है, Okay, चलो sir. आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। देन नेक्स्ट क्लास में ये इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। थैंक यू गाइस।